Everyone, today we are going to see one more topic from irrigation engineering, that is dams and spillway part 1 from unit number 5. The subject code is 1615505 and this is lecture number 9. So in this topic we will be dealing about dams and spillway. So we all know what is dam and what is spillway. So what is dam? Where water is stored. What is spillway? Through which water is being discharged when the HFL is increased. The HFL क्या होता है? हाई फ्लड लेवल जब बढ़ जाता है तो थ्रू स्पिलवे हम लोग वाटर को डिस्चार्ज करते हैं डाउन स्ट्रीम में. सो दैट इज स्पिलवे. सो लेट्स मूव इन टू द कंटेंट ऑफ द लेक्चर. So in this content it is given as first one is dam and we are going to see types of dam. ये डैम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, we are going to see in this video class. Okay, so first of all detailed content of dam. So we will be seeing what does dam means. Dam is a solid barrier constructed at a suitable location across a river valley to store flowing water. Simple is that where as we all know river flows from upstream side to downstream side, and we should also know whether it is perennial, non-perennial. If it is perennial, then only on that river irrigation project such as a dam or reservoir is being constructed, which is made up of concrete. Okay, so that is known as a dam. Okay, so why the dam is constructed? A dam is constructed to store water. What are the objectives type? First is hydropower. The same water can be used to produce electricity. Next is that same water can be used for irrigation purposes also. Okay, next is water for domestic consumption. That same water would be filtered and could be supplied to the nearby colonies or the cities through for domestic consumption. Next is drought and flood control. That is very much important. What is drought? Drought means akali, means कि sometimes दरार फट जाता है किसमें, खेतों में. तो that time also water is required, and when there is high rain there will be more flood. So that time also dam plays an important role in controlling the water. Okay, next is for navigation facility. Navigation मतलब means various type of navigation is possible, like import and export through the waterways. Okay, next is other additional utilization to develop fisheries. So water can be stored for fishery purpose, for having more income through fishing also plays an important role. So we constructed dam. Okay, so these were the following objectives. Next is, and as you can see in this picture, this is downstream side. Okay, and the dam is constructed. This is dam of the body. So the water in the upstream side is stored, and when the water increases, so the water will escape through the given sluice to this side. Okay, so this is the a structure of a dam. Next is, and we will be seeing what is the component of the dam. So this side is downstream side and this is upstream side. So in downstream side, as you can see, already we have seen in the previous lecture body of a dam. So similarly this is a body of a dam. Okay, so spillway, this is spillway which is provided in a maximum level. So when water increases in upstream, the water could escape from a spillway and goes to downstream side. Then is sluice way. This is hill means एड़ी जिसको पैर बोलते हैं. This is in shape of a leg, feet. So this is hill and this is a toe. Toe is provided at the downstream side, right below down, that is toe, and left down is hill. Okay, next is window gallery. Gallery means where it can be operate, and like for hydropower generation galleries plays an important role. And next is freeboard. The freeboard is constructed between maximum level and normal water level. So below gallery there is dead storage, and this is known as a live storage. So overall is known as a gross storage. Okay, so this is the structure of dam. This is upstream side and downstream side. Okay, next is, so what is hill? Contact with the ground on the upstream side. So we the part of the dam body which is contact in upstream side, that is known as a hill. Okay, toe.
So what is to contact on downstream side? Okay, so in the downstream side of the dam of the body which is contact to the ground, that is known as toe. Next is abutment. What is abutment? Sides of the valley on which structure of the dam rest. Sides of the valley on which the structure of dam rest, like both side is the bank and the abutment. The abutment which rest on the side of the valley, like दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और जहाँ पे वो अपना सारा बर्डन डालता है, लोड डालता है, उसको हम लोग abutment बोलते हैं. नेक्स्ट इज गैलरीज. व्हाट इज गैलरी? स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर लेफ्ट विद इन द डैम फॉर चेकिंग ऑपरेशन. सो वन रूम इज मेड इन साइड द डैम बॉडी just to check the smooth operation of the dam. Next is diversion tunnel. So what is diversion tunnel? Tunnel are constructed for diverting water before the construction of dam. This helps in keeping the river bed dry. So we need to have a diversion tunnel. Next is spillway. What is the spillway? It is the arrangement near the top to release the excess water of the reservoir to the downstream side. So when there is excess rain or a runoff through the catchment area, the water will increase in upstream side. So water should escape through spillway. Okay, and that water can be used for further irrigation projects. Next is sluice way. So what is sluice way? An opening in the dam near the ground level which is used to clear the silt accumulation in the river reservoir side. So what is sluice way? One is sluice gate and one is sluice way. So sluice way, one is center of the dam, one is below. So below is only to clean the silt which is being accumulated for the years. Okay, next types of dam. कितने प्रकार के डैम होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड डैम. तो रिजिड डैम मीन्स रिजिड का मतलब कहता है हार्ड. ओके, इट इज ऑफ 4 टाइप, दैट इज मैसनरी डैम, कंक्रीट डैम, टिम्बर डैम, स्टील डैम. वी विल बी सीइंग वन बाय वन. Next is masonry dam. As the name suggests, what does masonry mean? Masonry means the dam which is built either by using stone or a brick, that is known as a masonry dam, where cement mortar are used to join the masonry blocks. ठीक है, तो such example is gravity dam, arch dam, or example of masonry dam. That example is Nagarjuna Sagar masonry dam in India. So Nagarjuna Sagar dam is made of masonry, where it is made of brick or a stone, and cement is used as a mortar to fix that. Okay, so that is, as you can see, this is Nagarjuna Sagar masonry dam. Okay, so this is downstream side, and upstream side this is the dam of the body, and is apartment where the dam bodies rest. Okay, next is concrete dam. So what is concrete dam? Concrete dam is mostly made up of concrete materials. So what is concrete material? Mixing of cement, sand and water and aggregate, and forming a paste, and that paste so made into a mold, and it is then that is known as a concrete dam. So example of concrete dam, either it can gravity dam, arch dam, buttress dam, etc. can be constructed using concrete. Okay, so you all are familiar with the word concrete. So this is the picture of a concrete dam. Next is टिम्बर डैम. सो व्हाट डज टिम्बर मीन? टिम्बर मीन्स लकड़ी. लकड़ी को इस्तेमाल करके जो हम लोग एक छोटे से ब्रिज के रूप में बनाते हैं टेम्पररी पर्पस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिम्बर डैम बोलते हैं. ठीक है, ये अप टू हाइट कितने मीटर तक उड़ सकता है? 9 मीटर तक इसकी ऊंचाई जा सकती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिम्बर डैम. नेक्स्ट इज स्टील डैम. द डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग स्टील, दैट इज नोन एज ए स्टील डैम. उसका हाइट कितना जा सकता है? 15 से 18 मीटर तक उसका हाइट जा सकता है. ठीक है, लेकिन देयर इज ए पॉसिबल ऑफ गेटिंग कोरोजन, तो इसको भी हम लोग टेम्परेरी स्ट्रक्चर में ही इस्तेमाल, स्टील डैम का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डैम में नॉन रिजिड डैम. व्हाट इज नॉन रिजिड? वी हैव सीन रिजिड डैम. सो देयर आर 4 टाइप्स: मैसनरी, कंक्रीट, टिम्बर एंड स्टील. नेक्स्ट इज नॉन रिजिड डैम, दैट इज अर्थन डैम एंड रॉक फिल डैम. सो व्हाट इज अर्थन डैम? विल सी वन बाय वन. नॉन रिजिड में हम लोग अर्थन डैम देखेंगे. तो अर्थन डैम क्या होता है? द डैम विच इज़ मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी सॉइल विच इज़ अवेलेबल इन द लोकेलिटी. ओके, और द सेम सॉइल को हम लोग उस फाउंडेशन में डाल के और उसके अनुसार से उसका डिज़ाइन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थन डैम बोलते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऊपर से सर्विस रोड गया हुआ है और यहाँ पे पानी स्टोर हो रखा है, और यहाँ पे हमारा मिट्टी एक्युमुलेट किया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थन डैम बोलते हैं.
Next is Rockfill Dam. So what is Rockfill Dam? As you can see, there is a service road and the rocks is being placed, okay, to maintain the stability of dam. Okay, that is known as a Rockfill Dam. So इसको हिंदी में बोले तो मैं इंग्लिश में एक और वर्ड से बोले तो रिप्रैप भी बोल सकते हैं, to protect the slope of the both side of the dam. Okay, so we provide rock, okay, on the downstream side. Next is types of a dam based on structure. Now we are going to study about based on structure. So we have seen rigid and non-rigid. In that, now we will be studying about based on structure. So based on structure, it is of 4 types, that is gravity dam, arch dam, buttress dam and embankment dam. So all these 4 dams which is made up of either masonry or concrete. Okay, so we will be seeing one by one. So let's move into the number 1, that is gravity dam. So what is gravity dam? Gravity dam is a structure which resists the external force by its own weight or self weight. Gravity dams are generally constructed by using masonry or concrete, as we have seen earlier. So gravity dam क्या करता है, जो अपना सेल्फ वेट को ही मेंटेन रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम बोलते हैं. उसमें डिफरेंट टाइप्स का प्रेशर फोर्स लगता है, जैसे कि प्रेशर, वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, वेव प्रेशर, आइस प्रेशर, अर्थक्वेक प्रेशर और रेसिस्टेड बाय इटसेल्फ. ठीक है, वो अपने आप वो सारा प्रेशर को झेल लेता है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम बोलते हैं. द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम एक्चुअली ट्रायंगुलर इन शेप. वो किस में बना रहता है, ट्रायंगुलर शेप में बना रहता है. इन्फिल्ट्रेशन गैलरी कैन बी प्रोवाइडेड विद इन द डैम टू रेसिस्ट अपलिफ्ट प्रेशर. उसमें इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बना रहता है. उस क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन अपलिफ्ट प्रेशर. जो प्रेशर अपस्ट्रीम साइड में जो नीचे से जो लगता है उसको हम लोग अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, वो क्या करता है, सर्टन टाइम्स व्हेन अपलिफ्ट प्रेशर नहीं होता है तो फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है. इट कैन स्लाइडिंग कैन अकर, ओवरटर्निंग, क्रशिंग ऑफ टो. तो ये डाउन स्ट्रीम साइड में होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है व्हेन द रिक्वायर्ड वाटर डैम इज इंक्रीज. सो अप स्ट्रीम साइड देख लीजिए, डाउन स्ट्रीम साइड देख लीजिए. व्हेन द और इसमें से फ्लो है तो इसको हम लोग टो बोलते हैं. दिस एरिया इज नोन एज टो. ओके, तो डाउन स्ट्रीम साइड में बढ़ता है तो उसी को हम लोग ग्रेविटी डैम बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा आर्च डैम. तो शेप से ही आप नाम देख सकते हैं, दिस इज इन आर्च इन शेप. ठीक है, तो इसमें आर्च होता है, कॉन्वेक्स स्ट्रीम होता है. ठीक है, इस किससे बना रहता है, आइदर इट इज मेड ऑफ मैसनरी और कंक्रीट. ठीक है, और इसकी हाइट ऊंची रहती है और लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. ओके, तो ग्रेटर हाइट्स. तो आपने ये अमेरिका में भी बना हुआ है हॉवर्ड डैम, जो आर्च इन शेप होता है. ठीक है, सो दिस इज आर्च डैम. ओके, नेक्स्ट इज बटरस डैम. एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, ऐसे बना रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बटरस डैम बोलेंगे. बटरस डैम कंसिस्ट ऑफ फेस स्लैब. जो वो भी किससे बना रहता है, आइदर इट इज़ मेड ऑफ ए कंक्रीट और आइदर इट इज़ मेड ऑफ ए मैसनरी. ठीक है, तो और इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है. ठीक है, बट क्या करता है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है बाय दिस. ओके, सो लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मेकिंग बटरस. बटरस डैम इज आइदर स्ट्रेट और कर्व्ड इन प्लेन. वो क्या होता है, आइदर स्ट्रेट होता है और कर्व्ड इन प्लेन होता है. ठीक है, ग्रेटर द हाइट ऑफ द डैम हायर द नंबर ऑफ बटरस. मीन्स बटरस में जो आकार बना हुआ है, शेप बना हुआ है, जितना लंबाई या जितना ऊंचाई रहेगा उतना बटरस बना रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है दिस टाइप्स ऑफ डैम्स आर प्रिफर्ड वेयर द फाउंडेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी वीक. बटरस डैम हम कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कमज़ोर होता है वहाँ पे हम लोग बटरस डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे हम प्लांट को इंस्टॉल करते हैं. तो दैट इज़ बटरस डैम. नेक्स्ट इज एम्बैकमेंट डैम. एम्बैकमेंट डैम क्या होता है, एम्बैकमेंट क्या होता है, इनफिलिंग, किसी चीज़ को भर के बनाना, उसको हम लोग एम्बैकमेंट डैम कहते हैं. किस चीज़ से भरा जाता है, आइदर इट कैन बी फिल्ड बाय सॉइल और रॉक्स. ठीक है, कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है. एक होता है होमोजीनियस एम्बैकमेंट टाइप डैम, जिसमें होमोजीनियस में एक ही मटेरियल को इस्तेमाल करके उस डैम को बनाएंगे, उसको होमोजीनियस. नेक्स्ट है जोन एम्बैकमेंट डैम, सेंटर में कुछ प्रोवाइड करते हैं, डायफ्रागम एम्बैकमेंट डैम. तो हम तीनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे पिक्चर के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा. तो होमोजीनियस एम्बैकमेंट टाइप ऑफ डैम, तो इसमें क्या होता है कि वन टाइप ऑफ मटेरियल से हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बैकमेंट बनाते हैं. इट कैन बी ऑफ सॉइल और इट कैन बी ए, ठीक है, सॉइल हो जाए या रॉक हो जाए, उससे एक ही मटेरियल को इस्तेमाल करके बनाते हैं. तो ये आपका हो गया ये हो गया आपका अपस्ट्रीम साइड, ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम साइड. ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्बैकमेंट.
मीन्स फीलिंग, इसको भर के आप बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेटिक लाइन क्या है कि कई बार क्या होता है, देयर इज ए लीकेज और सीपेज होता है, इसलिए हम लोग एक टो में ड्रेन में कंक्रीट का बना देते हैं ताकि वो उससे पानी पसीजे नहीं और उससे फेलियर ना हो, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। और वन साइड में हम लोग स्टोन पिचिंग इज रिकमेंडेड इन अपस्ट्रीम साइड, इसके साइड जो होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टोन पिचिंग कर देते हैं ताकि इसकी मिट्टी गले नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज जोन एम्बैंकमेंट टाइप। एज जोन एम्बैंकमेंट डैम कंसिस्ट ऑफ impervious soil zone inside the previous soil of layer. Clay or a silt is a mixture of clay. Silt is used to make the impervious zone. Ordinary soil is used to make the pervious layer. तो as the name suggests, एक इसमें बाहर ये पूरा बना रहता है सतह, लेकिन एक अंदर impervious, जिससे क्या होगा, इधर का पानी इधर पास नहीं होगा, अगर पास भी होगा तो यहाँ तक होगा, वापस फिर इधर ही आ जाएगा, इधर पास नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जोन एम्बैंकमेंट टाइप। तो दो लेयर का बना रहता है, एक परवियस लेयर है, एक इम्परवियस लेयर। परवियस लेयर से तो पानी पास हो सकता है, लेकिन इम्परवियस लेयर से पानी पास नहीं हो सकता है, ठीक है, पानी पास नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज जोन एम्बैंकमेंट टाइप ऑफ डैम। नेक्स्ट इज डायाफ्रागम। डायाफ्रागम मीन्स आप देख सकते हैं बीच में एक शीट दिया हुआ है, डायाफ्रागम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये शीट क्या करता है, जैसे यहाँ से पानी अगर हमारा लीकेज होगा, सीपेज होगा, तो ये हमारा डायाफ्रागम क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, पानी को डाउन साइड में नहीं जाएगा। ये हमारा डीएस है, ये अपस्ट्रीम है, तो दैट इज नोन एज डायाफ्रागम एम्बैंकमेंट डैम। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। तो कितने प्रकार का डैम होता है बेस्ड ऑन फंक्शन, की कैसे उसका उपचार किया जाता है, क्या फ़ायदेमंद है। तो इट इज़ ऑफ 5 टाइप, दैट इज स्टोरेज डैम, डाइवर्सन डैम, डिटेंशन डैम, डिब्रिज डैम एंड कॉफर डैम। तो एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। तो एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज स्टोरेज डैम। स्टोरेज मीन्स पानी को हम लोग स्टोर करते हैं एंड फर्दर रेफरेंस के लिए, हम फर्दर यूज़ के लिए उस पानी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज डैम करते हैं। किस लिए हम लोग स्टोर करते हैं, वी स्टोर इट फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इरीगेशन पॉसिबिलिटी, देन hydro power generation. So we do various thing by storage dam. Next is diversion dam. What is diversion dam? Diversion dam which is constructed to divert the flow of water, like from upstream side पानी को हम डाइवर्ट करते हैं, किसके लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सन डैम बोलते हैं। नाम के से आप पहचान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिटेंशन डैम। तो डिटेंशन डैम क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ डिटेंशन डैम इज टू कंट्रोल फ्लड। इसका मेन कारण क्या डिटेंशन डैम का होता है, कि उस एरिया का जो HFL है, हाई फ्लड लेवल है, उसको कंट्रोल रखे। किस टाइम में, जब ज़्यादा रन ऑफ होगा, ज़्यादा रेन होगा, तो उस समय पानी को कंट्रोल करेगा, और जब एक्सेस हो जाएगा तो डाउन स्ट्रीम साइड में वो पानी को रिलीज़ करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेंशन डैम बोलते हैं। Next is debris dam. So what is debris dam? Debris dam is built to retain the debris of the river water. That is debris में क्या हो सकता है, सैंड हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, ड्रिफ्ट हो सकता है, ठीक है। उस सबको क्या करते हैं हम लोग, पानी को हम लोग कचरा को अपस्ट्रीम साइड में ही रोक लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिब्रिज डैम बोलते हैं। पिक्चर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ पानी आएगा और अपस्ट्रीम साइड में ही सारा कचरा जमा हो जाएगा, दैट इज नोन एज ए डिब्रिज डैम। सो नेक्स्ट इज कॉफर डैम। कॉफर डैम क्या है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या करना है, कॉफर डैम बनाना है, और उसके अंदर में हम लोग कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। तो क्या है, एक है टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। कॉफर डैम प्रोवाइड ड्राई एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मेन डैम। कोई भी अगर मेन डैम बनाना है तो हम लोग कॉफर डैम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि पानी को डिवाटर करके वो एरिया सूख जाए, और उसी से आप क्या करोगे, मेन डैम को आप बना सकते हो। सो दैट इज नोन एज ए कॉफर डैम। नेक्स्ट इज, तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या व्हाट वी हैव सीन अबाउट व्हाट इज डैम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, ओके। देन वी हैव सीन टाइप्स ऑफ डैम, वेरियस टाइप्स लाइक रिजिड, नॉन रिजिड, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। वी हैव सीन 4 टाइप्स ऑफ डैम, ओके। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यू नीड टू मेमोराइज ऑल टाइप्स ऑफ डैम, ओके। सो अगर किसी को भी डाउट होगा तो वी विल बी डीलिंग इन doubt session also. I have referred this following books, that is Dr. B.C. Punamiya book, then Santosh Kumar Garg book, and the online source that is google.com, ठीक है। ये तीनों बुक, तीनों वेबसाइट को मैंने खंगाला है, and then I have prepared this slide, okay. So just you have to study one by one slide, and you have to mark the points, okay. So thank you so much, thank you.